अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और आलमी खबरनामा में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। 16 से 20 फरवरी AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आगाज। नई दिल्ली बना आलमी टेक मुबाहिसे का मरकज। 100 से ज्यादा ममालिक के मंदूबीन की शिरकत। हिंदुस्तान ने रूस से तेल खरीदने से किया इनकार। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने एक मरतबा फिर किया दावा। इसराइल की जारहियत जारी। मकबूजा मगरिबी किनारे को रियासती मिल्कियत करार देने की मंजूरी दे दी। गजा बोर्ड ऑफ पीस का पहला इजलास 19 फरवरी को वाशिंगटन में इनेकाद। 20 से ज्यादा ममालिक के वफूद की शिरकत मुतवक्के। अमेरिका पाबंदियां उठाने पर बात करे तो जौहरी मुआहदे के लिए समझौते पर हैं तैयार। ईरान ने दिया बयान। चीन का ब्रितानिया और कनाडा के लिए 17 फरवरी से वीजा फ्री एंट्री का फैसला। अमेरिका की गैर मुतवक्के खारिजा पॉलिसी ने चीन से आलमी ताल्लुकात को फरोग दे दिया। और पाकिस्तान के खिलाफ शानदार कामयाबी के बाद हिंदुस्तानी टीम लौटी मुल्क। शानदार मुजाहरे पर मुल्क में है जश्न का माहौल। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। आज से नई दिल्ली में AI इम्पैक्ट समिट 2026 का बाकायदा आगाज हो गया है और इसके तहत दुनिया भर से टेक्नोलॉजी माहिरीन, पॉलिसी साजों और सरहद से वाबस्ता नुमाइंदों की बड़ी तादाद नई दिल्ली में जमा हो रही है। 5 रोज़ा इस आलमी कॉन्फ्रेंस में मसनवी जहानत का मुस्तकबिल, इसकी गवर्नेंस, मईशत और समाज पर मुरतब होने वाले असरात पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इंडिया AI इम्पैक्ट एक्सपो का इफ्तिताह अंजाम दिया। ये एक्सपो आज से 20 फरवरी तक जारी रहेगा और समिट की मरकजी सरगर्मियों का हिस्सा होगा। 100 से ज्यादा ममालिक की शिरकत ने इस तकरीब को आलमी सतह पर गैर मामूली अहमियत अता कर दी है और हिंदुस्तान को मसनवी जहानत के बैनुल अक़वामी डायलॉग्स का मरकज बना दिया है। And this is my favorite way to describe it. We live in a remarkable time, folks. We've all seen many technology waves, internet and mobile and cloud, but AI is unlike anything I've seen before, at least in my lifetime. We have potentially the prospect of being able to create an intelligence. We have potentially the first time in humankind the ability to manufacture intelligence. And intelligence is the most valuable commodity on the planet. It's made this species successful. It's created everything of value. But potentially the ability to create an intelligence is something that we've never seen before, and that's something we're all very excited about. And you have to remind yourself, we're just 1,000 days in from the ChatGPT moment. AI feels like it's been here forever, but it's just been roughly 3 years. But the progress that we've made in the last 3 years has been eye-watering. The models that you're seeing today, the capabilities that you're seeing today, are unlike anything we've seen in the last few months itself. So it's incredible to see how that's going in. And we're entering a new reality, folks. We're all used to putting intelligence to work through people. If you have any problem, any project in your business, what you do, you hire people, you bring people together. But with AI now, potentially you have the ability to buy intelligence. And imagine a world where intelligence moves from something which is scarce and expensive and hard to get to something which is abundant, something which is easy to work with. And that is a world we're getting all prepared for. And if intelligence is available on tap, if unmetered intelligence is available to all of us, it will change everything about how we run businesses and how we run our country. So if intelligence is coming, if unmetered intelligence is coming, I thought I'll give you my 5 ideas or 5 projections on what's coming our way with AI. Number one, there's still this debate on are the models getting better or are we hitting a wall? My sense is in 2026 we'll put this debate to an end. The models are definitely getting better. And in fact, the models that you see this week, and I'm not even talking this month, what you've seen this week, the launches that have just happened, these are unlike anything we've seen in the last 6 months. And by the way, this gap between the perception of these models, there are people who still say, I used ChatGPT 2 years ago or 6 months ago and it was hallucinating, to what you're seeing today. This gap is quite dangerous because sometimes people don't prepare for what's coming. So what you're seeing today is remarkable in terms of progress of these models. And we're also seeing this direct, unequivocal relationship between the compute flops we are putting in and the intelligence we create.
or the capability of these models. And in the next 3 years, there's roughly 1,000. अमेरिकी वजीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने एक बार फिर दोहराया है कि हिंदुस्तान ने रूस से तेल खरीदने से इनकार कर दिया है। मार्को रूबियो ने कहा, हिंदुस्तान ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि वो रूस से खाम तेल नहीं खरीदेगा, जो कि आलमी मंडी में रूस से तवानाई की खरीदारी पर बैनुल-अक़वामी पाबंदी और सिफारती दबाव के दरमियान अहम फैसला माना जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि यह कदम हिंदुस्तान की आलमी मशगूलियत की गहराई और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक नेशंस के साथ ताउन के अज़्म को उजागर करता है। ये ऐलान ऐसे वक्त सामने आ रहा है जब तवानाई की आलमी सप्लाई की गैर यकीनी सूरत हाल और जोग्राफियाई सियासी तनाव के दरमियान बड़े सारिफ ममालिक के जरिए मुतबादिल तवानाई के ज़राए और मंडियों की तलाश तेज़ हो गई है। इसराइली हुकूमत ने मकबूजा मगरबी किनारे के वसी इलाकों को रियासती मिल्कियत करार देने की मंजूरी दे दी है। इसराइली हुकूमत ने अपनी जारी हद को बरकरार रखते हुए मगरबी किनारे के वसी इलाकों को रियासती मिल्कियत करार देने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत ज़मीन के इंदराज का अमल दोबारा शुरू होगा, जो सन 1967 से मुअत्तल था। अब फ़लस्तीनियों को अपनी मिल्कियत साबित करने के लिए उनकी दस्तावेज़ात को जमा करवाना होगा। तो दूसरी जानिब इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ मुसलसल जारी हैं। आज भी गजा पर ताज़ा हमलों में मजीद 11 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि लेबनान और शाम सरहद पर ड्रोन हमलों में 4 लेबनानी भी शहीद हो गए। अमेरिकी सदर ट्रम्प ने कहा है कि बोर्ड ऑफ पीस के रुकन ममालिक जुमेरात 19 फरवरी को होने वाले इजलास में गजा में तामीर नौ और इंसानी इमदाद के लिए $5 अरब से भी ज़ायद के वादे का ऐलान करेंगे। ट्रम्प के मुताबिक रुकन ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूरी से कायम की जाने वाली इस्टेब्लिशन फोर्स और मुकामी पुलिस के लिए हज़ारों अहलकार फ्राहम करने के अज़्म का इजहार किया। ट्रम्प के मुताबिक आइंदा जुमेरात को होने वाला इजलास इस ग्रुप का पहला बाज़ाब्ता इजलास होगा, जो ट्रम्प इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में मुनक़िद होगा। इजलास में 20 से ज़ायद ममालिक के वफूद शिरकत करेंगे। उधर ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका पाबंदियां उठाने पर बात करने के लिए तैयार हो जाता है तो अमेरिका के साथ जौहरी माहदे के लिए समझौतों पर गौर करने के लिए ज़रूर आमेदा हो जाएगा। तेहरान में गुफ्तगू करते हुए ईरान के नायब वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, गेंद अब अमेरिका के कोर्ट में है कि वो साबित करे कि वो वाक़ई मुआहदा चाहता है या फिर नहीं। उन्होंने मज़ीद कहा, अगर अमेरिका मुखलिस है तो मुझे यकीन है कि हम मुआहदे की राह पर जल्द गामज़न हो जाएंगे। उधर चीन ने बरतानिया और कनाडा के शहरियों के लिए वीज़ा फ्री दाखिले का फैसला कर लिया है। मंगल 17 फरवरी से बरतानिया और कनाडा के शहरी बगैर वीज़ा के चीन जा सकेंगे। ये फैसला ऐसे वक्त लिया गया है जब बरतानिया और कनाडा वाशिंगटन के बदलते मिजाज के बायस बीजिंग से क़ुर्बत बढ़ा रहे हैं। मगरबी तज्ज़ियाकारों ने भी कहा, अमेरिका की गैर मुतवक्किल खारिजा पॉलिसी ने बरतानिया और कनाडा जैसे करीबी इत्तेहादियों को मजबूर कर दिया है कि वो बीजिंग की तरफ देखें और हालिया वीज़ा छूट इस नई हिकमत अमली का बड़ा समर है। इसी दौरान अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इन्हिसार पर शराकतदारी की ज़रूरत पर जोर देते हुए वस्ती यूरोप के साथ अमेरिका के ताल्लुकात को मजबूत बनाने का अहद किया। ट्रांस अटलांटिक ताल्लुकात पर बात करते हुए रूबियो ने कहा, अमेरिका एक इन्हिसार यूरोप नहीं बल्कि एक मजबूत और खुद इन्हिसार यूरोप का इत्तेहादी चाहता है। Thousands and thousands of troops deployed to the NATO mission. And we've made very clear, I think it was made very clear at the summit just a few days ago at the meeting of the defense minister level, we're not leaving NATO, we're not leaving, I mean, we may move a couple thousand troops from one country to another, but this has always been the case, this has always happened. By the way, we are not threatened or feel it is hostile to see NATO grow in its own capabilities, not independent of the United States, in conjunction with the United States. We don't think it's a negative thing that other countries have more influence in NATO, other partner nations have more influence in NATO, or that other countries within NATO have more capability. We view that as a positive. I see it reported yesterday in some places, oh, the Europeans are very upset, they're going to be less dependent on America now. We don't want Europe to be dependent. Now, we're not asking Europe to be a vassal of the United States. We want to be your partner. We want to work with Europe. We want to work with our allies. We want to work in cooperation with you. And our point has been and continues to be, the stronger you are, both on an individual basis in terms of countries and collectively as an alliance, the stronger the members of NATO are, the stronger NATO is. That's not minus the United States. That's just common sense. Okay? If you have an alliance made up of countries, the stronger all those members are, the stronger the alliance is. And we want the alliance to be so strong that no one will ever dare test it. No one will ever dare challenge it.
So we welcome any measures that are taken to strengthen the alliance by the individual members, and we see that as a very positive thing. Our relationship to Europe as a continent, the transatlantic relationship, is not just a military alliance. It is not just a commercial alliance or a trade alliance. If it was just built on commerce and military, then this is very transactional. चीन के मशरिकी सूबे जियांगसो में एक आतिशबाजी की दुकान में धमाके के नतीजे में 8 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए। चीन के देही अवाम खमरी तकवीम के एतबार से नए साल और दीगर इज्तिमाई तकरीबात मनाने के लिए उमूमन फुलझड़ियों और तेज़ आवाज़ वाले आतिशबाजी सामान का इस्तेमाल करते हैं। जियांगसो के इलाके डोंगहाई के दुकान में एक या ज़्यादा अफराद की जानिब से आतिशबाजी को गलत शक्ल में इस्तेमाल करने के नतीजे में धमाका हो गया, जिससे कि हलाकतें वाक़ हो गई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कल यानी कि मंगल को ढाका में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी के सरबराह तारिक रहमान की क़यादत में बांग्लादेश की नौमुंतखब हुकूमत की हलफबरदारी तकरीब में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक इस अहम मौके पर लोकसभा स्पीकर की मौजूदगी हिंदुस्तान और बांग्लादेश के अवाम के दरमियान गहरी और मजबूत दोस्ती को ज़ाहिर करती है। ये दो ममालिक को जोड़ने वाली जमहूरी इक़दार के तई हिंदुस्तान के पुख्ता अज़्म को भी ज़ाहिर कर रही है। बयान में बताया गया है कि एक जैसी तारीख़, सक़ाफ़त और बाहमी एहतराम से जुड़े पड़ोसियों के तौर पर हिंदुस्तान मिस्टर रहमान की क़यादत में बांग्लादेश में मुंतखब हुकूमत का खैर मक़दम करता है और इनके विजन और इक़दार को अवाम की भरपूर हिमायत हासिल हुई है। हिंद पाक T20 खेल में हिंदुस्तान की जीत के बाद कोलंबो में मैच के बाद स्टेडियम के बाहर हिंदुस्तानी मद्दाहों में ज़बरदस्त जोश व खरोश देखा गया। लोग हिंदुस्तान के शानदार परफॉर्मेंस पर खुश नजर आए और जश्न मनाते देखे गए। लोगों ने कहा वो वर्ल्ड क्लास मैच देखने के लिए स्टेडियम आए थे, मगर उन्हें पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने मायूस कर दिया। ताहम हिंदुस्तान की शानदार जीत को उन्होंने एक बार फिर तारीखी करार दिया। I really got scared in the beginning when they were batting and all, but thankfully they made it out. Bowling was too good. Too good. India! Too good. India! India! My team. India! Thank you so much. Thank you. Just how happy you are India has won. I am so happy. You came here to support, and what happened? What did you see today? What were I saw a lot of cheering and I'm really pleased that India has won today. Whose performance you liked the most and why? And what? Whose performance you liked the most? All of the Indian players, but I liked Yadav the best. Surya Kumar Yadav, yeah. So now you're going to go home and celebrate India's victory, Yes. and you think now India will win the World Cup? Yeah, I'm very sure, definitely. धो का डाला उनको अच्छे तरीके से धो डाला, धो के गार भी दिया, गार के निचोड़ दिया। लो पड़ गई पाकिस्तान। लेकिन अब पाकिस्तान में मुकाबला नहीं है। वो मुकाबला है 8-1 हो गया, 8-1 हो गया। इंडिया का मुकाबला पाकिस्तान करेगा? कहाँ है? कहाँ है पाकिस्तान? कहाँ है? कहीं नहीं है। शुरू से लेके आखिरी तक कल हम लोग देखते रह गए। Listen me, sir. I love Pakistan players, but Baba not deserved for 2020 player. I'm from India, New Delhi. But due to dirty politics, Pakistan is corrupt. Everything is corrupt. So player also collapse. What is Pakistan doing? I want my money back. I want my money back. What is Pakistan doing? Do they have no shame for their players, for their fans? They have no shame only. What are these performances? I think our biggest threat is India itself, India B, which is USA. USA is our biggest threat. Do you agree with me or no? Why have we spent so much money to come and watch this shit? Tell Pakistani government and the Pakistani players to do something about this. Come on. Do you agree with me or no, ANI? Exactly. Exactly. So who should we take seriously this tournament? US more, right? Exactly. Exactly. Waste of money. I mean, good vibes. We got to watch full cricket. Good vibes. Gambhir's men are doing well. But that's about it. Go India. 100% पैसा वसूल। जैसा हमने सोचा था वन साइड मारना है और वन साइड मार दिया उनको आज। हमको तो पहले से पता था भाई, हम लोग नहीं हारने वाले। इंडिया जीतेगा, जीतेगा और जीतेगा। 8-1 की लीड रहेगा, 8-1 की लीड रहेगी और 8-1 की लीड हो गई है। वर्ल्ड कप में आज तक पाकिस्तान का भी जीत नहीं।
और उधर पाकिस्तान की बुरी हार ने पाकिस्तानी मद्दाहों को बेहद मायूस कर दिया। पाकिस्तानी मद्दाहों ने हिंदुस्तान के शानदार खेल की जमकर तारीफ की और कहा पाकिस्तान का मुजाहरा दरअसल दिन ब दिन मायूस कुन होता जा रहा है। थोड़ा सा मुझे होप थी आज के टीम की कुछ चेंजेस, कुछ फॉर्मेशन ऐसी थी, हमारे स्पिनर्स ऐसे थे कि मुझे लग रहा था कि हम फंसा लेंगे मैच को और एटलीस्ट एक फाइट देंगे, बट इट्स लाइक द सेम रूटीन मैटर। बुमराह के जवाब हमारे पास नहीं है, हार्दिक को हम फेस नहीं कर सकते। इट्स द सेम सिचुएशन। वेल प्लेड टीम इंडिया एज ऑलवेज। देखिए, अगर इस तरह की परफॉर्मेंस रहेगी तो मेरा नहीं ख्याल है इंडिया से हम कभी भी जीत सकते हैं। सही है, इंडिया की वर्किंग, इंडिया का होमवर्क हमेशा बहुत अच्छा होता है। और आज ना मैं यूजुअली बड़ा पॉजिटिव होता हूँ, आज मेरा दिल टूटा है। जिस तरह इतनी गंदी परफॉर्मेंस है कि मैं आज लिटरली सारे इंडियन क्राउड को वेव करके थम्स अप दे के आए होंगे, यार वेल प्लेड, आपकी टीम बहुत अच्छी है और हम इस चीज़ को तस्लीम कर लेते हैं, मान लेते हैं दैट हम आपसे अच्छे नहीं हैं। हमने एक टाइम पे डेकेड्स में आपको हराया था, लेकिन पिछले 20-25 साल से इंडिया इज ऑन टॉप। वेल प्लेड इंडिया। जो पाकिस्तान की टीम है ना, ये टीम नहीं है, ये कुछ प्लेयर्स हैं यहाँ वहाँ से खेल रहे। पाकिस्तान टीम को हम हमेशा सपोर्ट करते हैं। पिछले 6-7 ICC इवेंट से हम लोग हमेशा देखते हैं पाकिस्तान इंडिया गेम। हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी में भी गए थे 2017 के अंदर, 2021 के वर्ल्ड कप में गए, 2022 में गए ऑस्ट्रेलिया, 2024 में न्यूयॉर्क में थे, 25 में चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ आए थे हम दुबई के अंदर देखने के लिए, और अब श्रीलंका में हम लोग हैं 2026 के अंदर। आई मीन जो पिछले 3-4 हुए हैं T20 वो बड़े अच्छे मुकाबले हुए हैं। मेलबर्न के अंदर ऑलमोस्ट पाकिस्तान जीता हुआ गेम था, हार गया, लेकिन ये तो वन साइडेड गेम था। बहुत सारी गलतियाँ करी। देखिए, बाबर आजम का ये टाइम था आज। अगर बाबर आजम, पाकिस्तान की आवाम मानती है बाबर आजम किंग है, तो किंग बन के दिखाए, विराट कोहली बन के दिखाए। विराट कोहली ये गेम आराम से जिताता था इंडिया को, ठीक है ना। आपने बाबर आजम को टीम में रखा इसीलिए था आज के दिन के लिए, जब 3-4 आउट होते तो बाबर आजम लेके चले, लेकिन बाबर आजम आज आउट हो गया। बाबर आजम कोई किंग नहीं है, उसको प्लीज खुदा के वास्ते किंग ना बोलें। किसी कहीं का किंग नहीं है बाबर आजम। बाबर आजम टीम में डिजर्व जगह करता ही नहीं है। बाबर आजम टीम में नहीं होना चाहिए। इनको कोशिश करनी चाहिए कोई और टीम बनाए। देखिए, ये टीम नहीं है, ये कुछ प्लेयर्स आगे प्लेयर्स हैं। और ये कौन ऐसा करता है फिर टीम के साथ? पहले बोले आप बाइकआउट कर रहे हो, फिर बोले हम खेलेंगे, फिर नहीं खेलेंगे, फिर खेलेंगे। आप कहाँ से प्रैक्टिस करोगे? आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। 16 से 20 फरवरी AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आगाज। नई दिल्ली बना आलमी टेक मुबाहिसे का मरकज। 100 से ज्यादा ममालिक के मंदूबीन की शिरकत। हिंदुस्तान ने रूस से तेल खरीदने से किया इनकार। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने एक मरतबा फिर किया दावा। इसराइल की जारहियत जारी। मकबूजा मगरिबी किनारे को रियासती मिल्कियत करार देने की मंजूरी दे दी। गजा बोर्ड ऑफ पीस का पहला इजलास 19 फरवरी को वाशिंगटन में इनेकाद। 20 से ज्यादा ममालिक के वफूद की शिरकत मुतवक्के। अमेरिका पाबंदियां उठाने पर बात करे तो जौहरी मुआहदे के लिए समझौते पर हैं तैयार। ईरान ने दिया बयान। चीन का ब्रितानिया और कनाडा के लिए 17 फरवरी से वीजा फ्री एंट्री का फैसला। अमेरिका की गैर मुतवक्के खारिजा पॉलिसी ने चीन से आलमी ताल्लुकात को फरोग दे दिया। और पाकिस्तान के खिलाफ शानदार कामयाबी के बाद हिंदुस्तानी टीम लौटी मुल्क। शानदार मुजाहरे पर मुल्क में है जश्न का माहौल। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज।